Namaste student. This is Priyanka Kanal from KANAL'S Academy. Let us continue with the topic, that is linear equation in two variables from our last session. Before that, let us once again revise what is linear equation in two variables. Standard form of a linear equation in two variables is ax plus by is equal to c, where the degree of x and y should always be equal to 1. Coefficients that are a, b and c, they are supposed to be real numbers, where a and b both should not be equal to 0. This is what we have already studied in our last session. Along with that, we had studied the simultaneous pair of a linear equation. There are always supposed to be two equations that occur at the same time are called as simultaneous equations. We require two equations in linear equation because it is of two variables. That is a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2, where a, b and c all are coefficients. Today what we are going to start is with one of the topic related to your chapter, that is called as determinants. What is it called as? Determinants. Now what do I mean by this? Determinants is nothing but a box method or a square matrix method where the numbers are inside the modulus. How to solve it? As and when we go to school, sometimes we do practice march path, that means the left, right. Similarly, we are supposed to link with this and remember it, that it is supposed to start from left to right. Where it is supposed to start from? Left to right. So, left may we have here A, which is multiplied by D. So, it is D. Always remember this goes as a cross sign. So, it is D multiplication. Then minus, again from left to right. So, here it will be top, that is what D, multiply it by C. So, it becomes as AD minus BC. I'll repeat once again. The determinant method is multiplying it from left to right, the numbers in the modulus of the square matrix box inside. A into D will become AD, B into C will become BC. And the two products are supposed to be subtracted. This is how we are going to solve 2-3 examples of determinant. Why we are going to study this? Because this is related to your next method, that is solving of linear equation. Let us take one more example. If I consider here as 3, 2, 4 and let us take one number as 5. So this is going to be as first left to right, that is 3 into 5 minus 4 into 2. This will be as 3 5s are 50. Since there is no minus sign in between, so no plus minus minus. Then it will be again minus here. 4 2s are 8. Always solve the bracket first. We are going to follow the method of board mass. Always we are going to solve the bracket first. 3 5s are 50 plus plus plus. 4 2s are 8 plus plus plus. We are never going to ask for sign of the greater number in multiplication. Ahead we move. It will be opening the brackets. 15 minus 8, which is nothing but how much? 15 minus 8 is 7. So here it will be 7. This is your answer. Let us try one more sum here with a minus sign we will take. For an example, it is minus 2, 4 and 3 minus 6. It will be written as minus 2 into minus 6, because as you can see here it is minus 2, here it is minus 6. Minus, here it is going to be 4 into 3. As you can see, there is no minus sign here. I have not put any minus sign here.
Next, it will be now minus minus plus. As I said earlier, we are never going to ask for the sign of the greater number in multiplication. So minus minus plus, answer will be in plus only. 6 2s are 12 minus plus 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 4 3s are 12. This is going to be opening the bracket. 12 minus 12. My answer is 0. There is no issue if your answer is 0. If the sum is like that, answer 0 आने वाला होगा तो आएगा. So in this we have understood two example basically, that is 3 5 4 2 minus 2 minus 6 4 and 3. Remember one rule, that is following from left to right. I hope everybody has understood with this method of determinants. Your answer can be positive, your answer can be 0, your answer can be negative. Whatever the answer comes, if your method is correct, all the answers are accepted. Now, let us start with the method that is called as Cramer's rule to understand the solving of linear equation in two variables. Now, why Cramer's rule? Because the mathematician who has derived this method is named as Gabriel Cramer. That is why it is called as Cramer's method. So, we are going to take one example to understand the Cramer's rule. Let me write down the question here. For an example, the question is x plus 2y is equal to minus 1 semicolon. 2x minus 3y is equal to 12. So, by Cramer's rule or for Cramer's rule, basically we are going to compare the equation with the standard form first. For Cramer's rule, we are supposed to compare. So we are going to write down the step as comparing the above equations with the standard form, that is a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. Here, you are supposed to specifically write all the details properly. हम जब कंपेयर करेंगे ये दो इक्वेशंस के साथ, तो हमने देखा यहाँ पे a1, ये हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, a1 यहाँ पे इसके साथ कंपेयर किया जाएगा. जब x के आगे कुछ भी नहीं होता है तो इसका मतलब वो नंबर 1 होता है. तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 1. एट ए टाइम एक इक्वेशन लेंगे और एक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. b1, a1 इज 1, b1 यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस 2, प्लस नहीं लिखे तो चलेगा, सिर्फ 2 लिखा तो भी चलेगा. यहाँ पे c1 जब हमने कंपेयर किया तो हमें मिला -1. आई रिपीट वंस अगेन, हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया. a1 इज 1, b1 इज 2, c1 इज -1. सिमिलरली यहाँ पे मुझे मिलता है a2 which is 2, b2 which is -3 and c2 which is 12. ये हमें यहाँ तक पता चल गया कि a1 क्या है हमारा, b1 क्या है हमारा, c1 क्या है हमारा, a2, b2 and c2. Now डिटरमिनेंट्स का मेथड चलने वाला है हमारा. डिटरमिनेंट्स चलाने के लिए सबसे पहले हमें उनका बेसिक समझना है. एक आएगा d. Now there are basically 3 steps जिससे हमें ये आंसर मिलने वाला है. d का फॉर्मूला रहता है a1, a2, b1, b2. कहां से मिलेगा? यहां से, जो हमने ऑलरेडी ढूंढा था. नेक्स्ट हमारा रहेगा dx. नाउ ऐसे याद रखना है कि dx, x जो है वो सबस्क्रिप्ट रहता है, मतलब नीचे के तरफ लिखा जाता है. dx जब हम ढूंढते हैं तो x से जुड़ा हुआ कोएफिशिएंट, आई रिपीट वंस अगेन, x से जुड़ा हुआ कोएफिशिएंट हमारा कौन है? a1. x से जुड़ा हुआ हमारा कोएफिशिएंट कौन है? a2. तो a1 a2 की जगह पे हम लिखेंगे c1 c2. अब ये जब सम का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं यूज होने वाला है. तो dx जब हम ढूंढते हैं तो x के जो कोएफिशिएंट है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता,
और उसकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं C1 और C2 को। B1 और B2 रिमेन्स द सेम। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा dy। जैसे हमने x ढूंढते समय x के कोएफिशिएंट को इस्तेमाल नहीं किया था, वैसे ही हम y ढूंढते समय y के कोएफिशिएंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब y का कोएफिशिएंट कौन है? b1 और b2। तो सेम a1 a2 जैसा था वैसा रहेगा, बट b1 b2 की जगह पे आपके पास आएगा c1 c2। अब ये जो मैंने टेक्निक आपको समझाई है वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग या याद रखने के लिए इजी होती है कि जब मैं d इस्तेमाल करती हूँ तो a1 a2 b1 b2, पर जब मैं dx ढूंढती हूँ तो x का कोएफिशिएंट नहीं आता, उसकी जगह पे c1 c2। और जब मैं dy ढूंढती हूँ तो y का कोएफिशिएंट नहीं आता, उसकी जगह पे आता है c1 c2। ये 3 स्टेप के बाद हम सिंपली, अभी तक हमें x एंड y नहीं मिला है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? x एंड y ढूंढना, बट अभी तक हमने क्या ढूंढा? सिर्फ डिटर्मिनेंट्स। अब हम ढूंढेंगे x, जो फाइनल स्टेप होगा इट विल बी dx अपॉन d। dx कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। d कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। सिमिलरली y ढूंढेंगे तो स्टेप आएगा dy अपॉन d। ना स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट 2-3 सम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाता है। x ढूंढेंगे तो dx अपॉन d, क्योंकि x ढूंढ रहे हैं तो x की जरूरत है। dx अपॉन d ऐसे याद रखना कि d जैसे कट हो जाता है x रिमेन होता है, ऐसा होता नहीं है। बट फिर हमें याद रखना है कि ये जो dx है वो ऊपर रहता है और ये जो d है वो नीचे रहता है। अगर आपने ऊपर कर दिया उल्टा तो आंसर गलत आ सकता है। अब हम देखेंगे कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म हमने समझ लिया है तो सम को रिलेट करते हैं। इस सम के हिसाब से यहाँ पे मेरा d क्या होगा? देयरफॉर इट इज a1 a2 b1 b2। व्हाट इज माय a1? 1, तो यहाँ पे आएगा 1। a2 इज 2, तो यहाँ पे आएगा 2। b1 इज 2, तो यहाँ पे आएगा 2। b2 इज -3, तो यहाँ पे आएगा -3। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। मैंने d कहाँ से ढूंढा? a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। अब हमारा रूल अप्लाई होगा लेफ्ट राइट लेफ्ट वाला। 1 इंटू -3 लेफ्ट, 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। दिस इज गोइंग टू बी प्लस माइनस माइनस। मुझे कोई पूछने का जरूरत नहीं है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 माइनस एज इट इज 2 2 जा 4 प्लस प्लस प्लस, ओपनिंग द ब्रैकेट्स, -3 -4। आंसर विल बी माइनस माइनस प्लस। करना प्लस है, बट सिंस यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है इसलिए हम पूछेंगे साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। माइनस माइनस प्लस, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 4, 4 का साइन है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। 3 + 4 इज व्हाट? 7, तो यहाँ पे आएगा 7। आई रिपीट वंस अगेन, माइनस माइनस प्लस। करना प्लस है बट लिखना माइनस है इस केस में, क्यों? बिकॉज साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस है। तो हमारा d जो हमें मिल गया वो है -7। इसको हम बॉक्स में रख देंगे ताकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा dx को सर्च करना। dx होगा c1 c2 b1 b2। Who is my c1? -1. Who is my c2? It is 12. Who is my b1? It is 2. And who is my b2? It is -3. Let us open it once again. It will be -1 into -3 minus left to right. मैंने दोनों के माइनस साइन इंक्लूड किए हैं आंसर में। यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं नंबर वो है 12, तो यहाँ पे आएगा 12। दिस इज इक्वल टू ना माइनस माइनस प्लस, बट वी आर नॉट गोइंग टू आस्क फॉर द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा। 3 1 जा 3 माइनस प्लस 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 2 into 12 is 24. This is equal to 3 minus 24, which is equal to plus minus minus sign of the greater number. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है। तो प्लस माइनस
माइनस हो जाता है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आता है, 24 में से 3 निकल जाता है तो कितना बचा 21, तो आंसर आया 21। दिस इज व्हाट, दिस इज माय dx। इसको हमने बॉक्स में डाल दिया। नेक्स्ट हमारा आंसर फाइंड करना है, वो है dy। dy इज इक्वल टू व्हाट, हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था, a1 a2 c1 c2। व्हाट इज माय a1, माय a1 इज 1। व्हाट इज माय a2, माय a2 इज 2। माय c1 which is -1 and my c2 which is 12। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 into 12 minus -1 into 2। एक्सप्लेन कर देते हैं, 1 into 12 and -1 into 2। ऑलवेज लेफ्ट वाला पहले, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा। दिस इज इक्वल टू 1 12 जा 12, प्लस 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 हो रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 2 1 जा 2। ये आप देख सकते हैं हमने ब्रैकेट में रखा है बिकॉज यहाँ तक अभी हमारा ओपनिंग करना बाकी है। दिस इज इक्वल टू 12 माइनस माइनस, नाउ यू कैन सी मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो माइनस माइनस प्लस साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है। आई रिपीट वंस अगेन, सिंस यहाँ पे ब्रैकेट आ रहा है तो आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 2। दिस इज इक्वल, हम यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं ना बच्चा, वो सब नया मेथड है, टेक्निक अलग अलग है बट बेसिक्स रिमेन द सेम। जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, वो हमें बहुत अच्छे से ध्यान देके करना है। नेक्स्ट आंसर हमारा अभी आने वाला है, फाइनल स्टेज है, वो है x। सो x हम ढूंढ लेंगे विच इज इक्वल टू dx अपॉन d। व्हाट इज dx, हमने पहले ही ढूंढा था, दैट इज -21 अपॉन d हमने ढूंढा है -7। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस कट हो जाता है, बेसिक है, 7 1 जा 7, 7 3 जा, तो x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली हमारा y जो होगा वो होगा dy अपॉन d। दिस इज इक्वल टू dy क्या है हमारा 40 और d क्या है हमारा -7। दिस इज इक्वल टू, अब ये माइनस है नीचे, ऊपर तो माइनस नहीं है तो ये कटेगा नहीं, बट ये माइनस साइन ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, 7 1 जा 7 2 जा, तो हमारा y आ जाता है -2। सो इस तरीके से हमने क्रैमर्स मेथड से, क्रैमर्स रूल से हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया है। हम वापस फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास 2 इक्वेशन होते हैं, हम उस 2 इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, जहां से हमें मिलता है हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2। डिटर्मिनेंट्स ढूंढने के लिए हमें एक मेथड आता है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया जाता है। d जब बेसिक डिटर्मिनेंट होता है तो यहाँ पे इस्तेमाल होता है a1 a2 b1 b2। dx में इस्तेमाल होता है c1 c2 b1 b2, और y dy में इस्तेमाल होता है a1 a2 c1 c2। x ढूंढते हैं तो dx अपॉन d, y ढूंढते हैं तो dy अपॉन d। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू टेक्स्ट स्टैंडर्ड। रिमेनिंग जो भी होता है वो हमारा बेसिक मैथ्स इधर इंट्रोड्यूस होता है। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट सम, वन ऑफ द सम ऑफ योर क्रैमर्स रूल। वी विल बी स्टडीइंग वन मोर एग्जांपल टुडे। आई एम गिविंग यू 2 minutes to see over it and understand it myself. Okay, now we'll try one more example. Let us take an example. 4n plus 6n is equal to 54
सेमीकोलन 3m plus 2n is equal to 28. सेम होगा, हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म सेम रहेगा बच्चा, भले आपके इक्वेशन में एक्स एंड वाई नहीं है, बट कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा वही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हमारा a1 हो जाता है 4, जैसे देखा a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 6, c1 इज इक्वल टू 54, वैसे ही a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to 28. Again the concept remains same. Let us change the values here. b हमारा आता है a1 a2 b1 b2, तो a1 आएगा हमारा 4, a2 आएगा हमारा 3, b1 आएगा हमारा 6, b2 आएगा हमारा 2। दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन करेंगे लेफ्ट टू राइट, 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 4 2 is 8 माइनस 6 3 is 18, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, इट विल बी माइनस 10। हमारा d हमारे पास आ गया है विच इज इक्वल टू माइनस 10। नेक्स्ट होगा हमारा dx विच इज गोइंग टू बी c1 c2 b1 b2। c1 है हमारा 54, c2 है हमारा 28, b1 है हमारा 6 और b2 है हमारा 2। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, दिस इज इक्वल टू 2 4 8 2 5 10 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 6 8 48, 4 कैरी 12 प्लस 4 विल बी 60, तो ये हमारा आंसर होता है 168। अब इसको हम ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, अगेन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज 168 बड़ा है 108, 168 माइनस 108, 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 0 विल बी 6, 1 माइनस 1 विल बी 0, सो हमारा dx हो जाता है माइनस 60। नेक्स्ट आएगा हमारा dy, dy is going to be what, a1 a2 c1 c2। What is my a1? a1 is my 4, a2 is my 3, c1 is my 54 and c2 is my 28. This is equal to again 4 into 28 minus 54 into 3. As you can see, 4 into 28, 54 into 3. This is equal to 4 8 जा हो जाएगा, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 9 10 and 11 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 50 and 1 60। This is equal to प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पे आएगा माइनस, 162 में से 112 निकल गया तो 2 minus 2 is 0, 6 minus 1 is 5, 1 minus 1 is 0। सो ये हो जाता है हमारा D1। इसको हमने बॉक्स में कर दिया। अब हमारा फाइनल आंसर आएगा वो होगा x। सो x इज इक्वल टू dx अपॉन d विच इज इक्वल टू, व्हाट इज माय dx, माइनस 60। तो माइनस 60 अपॉन d, व्हाट इज माय d, माइनस 10। माइनस माइनस कट हो जाता है, 60 अपॉन 10 क्या हो जाता है, 6। तो ये हमारा x हो जाता है। नेक्स्ट हमने सर्च किया हमारा dy या y इज इक्वल टू dy अपॉन d, दिस इज इक्वल टू dy इज व्हाट, माइनस 50 अपॉन d, d है माइनस 10।
सिमिलरली माइनस माइनस कट हो जाता है, 50/10 हमारा हो जाता है 5। सो हमारा y हो गया 5। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन हम हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, x इज इक्वल टू 6 सेमीकोलन y इज इक्वल टू 5। I hope everybody has understood this method of solving the linear equation by Cramer's rule. We'll repeat once again. Equation को हम compare करेंगे। Equation भले x and y में ना हो, but फिर भी comparison हमेशा standard form में होता है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस तरीके से ढूंढेंगे। वैल्यूज को पुट ऑन करेंगे, बेसिक मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन एडिशन करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाए। बेसिकली बच्चा हम ऐसे भी लिखते हैं और सोल्यूशन हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज x, y इज इक्वल टू 6, 5। हमेशा x पहले, y, x की वैल्यू पहले, फिर y की वैल्यू। इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय क्रैमर्स रूल स्टडी करते हैं। सो हम इसके साथ आज आपको थोड़े बहुत और एग्जांपल्स देने वाले हैं, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। अगर कुछ डाउट डिफिकल्टी रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।